आज की क्लास में जो हम आगे का पार्ट का हाँ जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था, हम उसके आगे का पार्ट हुँ, कवर करते हैं। ठीक है, हाँ जी, हमने ट्रेडिंग अकाउंट। इन आवर लास्ट क्लास we have discussed the introduction to financial statement, and the most important account is about the manufacturing account. And manufacturing account is prepared by the manufacturing companies, ठीक है ना, हुँ, हुँ, for the production of the goods. But for the trading purpose, we need to prepare the trading account. ट्रेडिंग And this account अकाउंट। is prepared before the trading account, okay? And the manufacturing account is prepared before the trading account. So, so please mention that manufacturing account is prepared before the trading account. Before the trading account, okay, we need to prepare a manufacturing account. So the balance of this account is transferred to the trading account. And the और जो इस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? इस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है, एंड द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज अ परफॉर्मा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. ठीक है, सो ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या है, परफॉर्मा होता है. सो दिस इज अ परफॉर्मा ऑफ अवर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. हियर इज अ डेबिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, particulars. Here is the amount. So here is our two opening stock. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक्स है, सारे हुँ, एक्सपेंसेस होंगे, एंड दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड with production of goods and services later on. ठीक है ना, here is the sale of the scraps. The exact sales यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, exact sale does not come here. Here is the sale of the scrap. It means the scrap of the our raw material, which the our damaged द raw वेस्ट। material. हुँ, Yes, our the waste and the damaged हुँ, raw material. So here is the our the हुँ, by हुँ, the closing stock. So raw material and work in progress. Okay, raw material and work in progress. Here is the by the sale of the scrap. Sale of the scrap. Scrap is about the waste. So by the हमारे स्क्रैप है उनको सेल करके बेच के, एंड देन बाय द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन. हियर इज द अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? सो हियर इज अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कि उसकी कॉस्ट है जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या की गई है, ट्रांसफर की गई है. ठीक है, टू द कॉल एंड द फ्यूल, टू वर्क मैनेजर सैलरी, टू रिपेयर ऑफ द प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, एंड टू द अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल दीज एक्सपेंसेस कम्स हियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, दिस अकाउंट इज द हुँ, आउटकम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. द ट्रायल बैलेंस। दिस मीन्स कि हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट हम एक बार इसका हम ये फॉर्मेट देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का. द फॉर्मेट ऑफ हुँ, trading account is similar to the manufacturing account, but the basic difference is that it is prepared after the manufacturing account, and it is prepared for the final goods and services which have been हुँ, हुँ, ठीक है ना, sold by the organization or the business. This is prepared for the final goods and the services. Please mention that. It is prepared for the final goods and services. And how do we prepare that trading account? So please uh, see here, the trading account includes only such transactions which are related to the goods. ठीक है, the trading account includes करते हैं only such transactions जो कि goods से relate करती हैं, तो which are related with the goods, such as opening stock, closing stock. ठीक है, because opening stock is has also relation with the goods. Opening stock, closing stock, purchase of the goods, purchase of the goods, sale of the goods, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. ठीक है, परचेज रिटर्न है परचेज का गुड्स के परचेज के लिए, परचेज ऑफ द गुड्स, सेल ऑफ द गुड्स गुड्स के सेल के लिए. सो हेयर इज अ परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जितने भी सारे हमारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. सो द ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड्स ओनली सच ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विद द गुड्स. वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि हमारे गुड्स के साथ रिलेट करती हैं.
So trading account includes only such transactions which are related with the goods such as opening stock. ठीक है, तो finally I am again and again repeating this line. It is relation, has a relation with the goods, has a relation with the final goods. ठीक है, has a relation with the all the final goods. ठीक है, all the expenses which occurred at the time and at the time of manufacturing and selling of the goods as well as. But manufacturing account is prepared only for the purpose of manufacturing. It means only for the purpose of preparing or procurement of the goods. So finally, trading account is merely the result of the trading. So please mention that trading account is merely a result of the trading. जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो मेरली जो हम ट्रेडिंग होती है ट्रेडिंग के रिजल्ट के लिए होता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट इज मेरली द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग, इन्वॉल्व करता है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि गुड्स को खरीदना और गुड्स को क्या करना है, बेचना है. तो इन्वॉल्व परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, यानी कि हम गुड्स को परचेज करते हैं और हम गुड्स को सेल करते हैं. नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट्स के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट्स आर, ट्रेडिंग अकाउंट्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं? नंबर 1, टू नो द ग्रॉस रिजल्ट. ठीक है, हमें क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट. और हमें ग्रॉस रिजल्ट निकालना है अराइजिंग फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स. गुड्स को खरीद के और या उसे बेच के सेल करके हम, क्योंकि ऑब्वियसली हमने यानी कि गुड्स को सेल कर रहे हैं, सेल करके हम उसके जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को निकालते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम कंप्यूट करते हैं. तो टू नो द ग्रॉस रिजल्ट, क्या निकालने के लिए? ग्रॉस रिजल्ट निकालने के लिए, जो उसका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को निकालने के लिए, जो कि यानी कि ग्रॉस रिजल्ट मतलब द एवरेज रिजल्ट? नहीं नहीं, एवरेज रिजल्ट इज नहीं बेटा, प्रॉफिट निकालने के लिए कि आपको गुड्स अच्छा, को ओके। खरीद के और बेच के, क्योंकि आप ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप एक आसान यानी कि लैंग्वेज में हाँ, ट्रेडिंग, लेन देन। हाँ यानी कि बाइंग एंड सेलिंग. ठीक है, ट्रेडिंग में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड नहीं होगा, प्लीज मेंशन दैट. ठीक है, सो ट्रेडिंग में आपके पास बाइंग एंड सेलिंग ही इंक्लूड होता है. सो इन द ट्रेडिंग अकाउंट वी ओनली इंक्लूड द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द गुड्स. एंड ठीक है, और ये हमने कितने में खरीदा और हमने कितने में उसे सेल किया, उसके द्वारा हम क्या कंप्यूट कर पाते हैं? उसके द्वारा हम यानी कि उनके प्रॉफिट को निकाल पाते हैं, उनके हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालते हैं, उनके हम ग्रॉस लॉस को निकालते हैं. तो क्या लिखा है? टू नो द ग्रॉस रिजल्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स. गुड्स को खरीद के या बेच के जो भी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या जो ग्रॉस रिजल्ट निकलता है. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? ठीक है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस रिजल्ट निकलता है गुड्स को खरीद के या उसे बेच के. अब है सेकंड क्या है? टू आइडेंटिफाई द वीक स्पॉट्स ऑफ द फर्म. ठीक है, यानी कि फर्म के, ठीक है, कौन जो भी उसके वीक स्पॉट्स हैं, यानी कि आपको, क्योंकि देखो आपको कंपेयर करना है, परचेज को आपने कंपेयर किया, सेल्स को आपने कंपेयर किया, ठीक है, आपने एक पीरियड के स्टॉक को आपने कंपेयर किया दूसरे यानी कि उससे पहले वाले पीरियड के साथ. तो यानी कि सेल्स एंड द स्टॉक ऑफ वन पीरियड विद सिमिलर आइटम्स ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि उससे पहले वाले पीरियड की सिमिलर आइटम के साथ. तो टू आइडेंटिफाई द वीक स्पॉट्स ऑफ द फर्म, फर्म के वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना बाय कंपेयरिंग परचेजेस को कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग द परचेजेस, सेल्स एंड द स्टॉक ऑफ वन पीरियड. एक पीरियड के स्टॉक को हम दूसरे पीरियड के स्टॉक के साथ ही क्या करते हैं? कंपेयर कंपेयर कर करते हैं. करेंगे। सेल्स को हम्म। कंपेयर करते हैं, परचेजेस हम दोनों से कंपेयर करते हैं. तो फर्म के जो कम यानी कि वीक स्पॉट्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना. तो फर्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना, सेकंड है हमारा यानी कि फर्म के वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट क्या है? टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू द टर्नओवर. ठीक है, कि जो भी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर
कि रेशो को निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन होती है, सो टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट रेशो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू द टर्नओवर in order to get result how far have been achieved, in order to get the result कि हमने कितना रिजल्ट अचीव किया है ये निकालने के लिए कि हमारी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट टू टर्नओवर यानी जो हमारी सेल्स होती है उसकी रेशो को निकालने के लिए। सो टू नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशो ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट टू द टर्नओवर। क्लियर? नाउ द है फोर्थ पॉइंट इज दैट टू नो द इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ विच परसेंटेज बियर टू ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहे टू नो द इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस कि हमने यानी कि ऑफ विच की जिस पे हमने परसेंटेज बियर की है उस पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट पे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो भी इंफॉर्मेशन थी उन्हें लेने के लिए। सो टू नो द इंफॉर्मेशन ऑन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ विच परसेंटेज बियर टू द ग्रॉस प्रॉफिट। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और मेन अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी आगे स्टडी करने से पहले आपको बस सिंपल इतना जानना है, आप इसके परफॉर्मा के अकाउंट्स को देख लोगे तो आप इसको इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। मेन है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं कौन कौन से हमें आइटम्स रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली देखो हमने क्या किया है, इसमें बाइंग की है और हमने सेलिंग की है, तो बाइंग और सेलिंग के लिए हमारे पास परचेज होने चाहिए, सेल होनी चाहिए, और इनसे रिलेटेड कोई भी खर्चे हुए हैं तो वो एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होंगे। हम्म जो हम्म इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके अलावा लाइक परचेज, जैसे पेटी कैश का है वो भी, हाँ, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो वो लॉस इन। हम्म, ओके। ठीक है, ओके। तो जब भी हम क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें हमारे पास समझ में आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। So ओके दी। the trading account is prepared by those transactions which depend on the goods items which are directly involved in the trading account. So the opening account है and a closing account, ठीक है। Purchase and purchase returns here, ठीक है, here the words return is also there। परचेज है आपके पास, परचेज है, सेल है, ठीक है, एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो परचेज के साथ आपके पास परचेज रिटर्न्स भी हैं, सेल के साथ आपके पास सेल रिटर्न्स भी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंट है, ओपनिंग अकाउंट भी है आपके पास और क्लोजिंग अकाउंट भी है। तो द आइटम जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, द आइटम्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर वन इज द ओपनिंग अकाउंट, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चे, एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन से हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं? हम्म दिस इज द हम्म स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? So the structure of trading account, the trading account of XYZ company for the year ending, यानी year ending हम्म के लिए XYZ कंपनी के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने प्रिपेयर करना है, सी प्रॉपरली, हेयर हम्म कम्स द डेबिट साइड, ठीक है ना, ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड, ठीक है ना। देर इज अ रूल इन द नॉमिनल अकाउंट दैट आपको जितने भी सारे आपके खर्चे हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं और आपके लॉसेस हैं, यू हैव टू डेबिट। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस। सो जितने भी सारे हमारे खर्चे हैं, जितने भी सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, सी हेयर दीज आर दी अवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये हमारा फैक्ट्री का है, फ्रेट है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। वर्ड। सो प्लीज रिमेम्बर दैट वेजेस, ठीक है, सैलरी, सैलरी आर अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर? सैलरी इज माई द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बट वेजेस इज माई द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास आ गया है वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कार्ट्रेज, फ्रेट, फैक्ट्री रेंट, बेल्टिंग। क्लियर? ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके क्या होंगे, डेबिट होंगे। इसके साथ साथ आपके पास इसका जो बैलेंस कितना है,
टू स्टॉक अकाउंट, क्योंकि स्टॉक है ये मेरा एसेट्स है, स्टॉक का नेचर हमेशा डेबिट होता है, तो वो आपका डेबिट। डेबिट के साइड में है, क्योंकि इसका ओपनिंग अकाउंट हम्म, है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, एंड दिस इज द अवर परचेज की, क्योंकि हमने खरीदा है, तो ये भी हमने परचेज किया है। वी नो दैट कि जो परचेज का नेचर है वो भी डेबिट होगा। सो परचेज का नेचर आपने यहाँ लिख सकते हो। और फिर अगर उसमें से कोई गुड्स हमने परचेज किया था और वो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सो टू परचेज है, माइनस कर दो, लेस कर दो रिटर्न्स, जो भी रिटर्न्स हैं हम्म, उन्हें आप माइनस कर दो। सो परचेज में से मैंने रिटर्न्स को लेस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आ गया है नेट अमाउंट। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपके पास है ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग हम्म, स्टॉक, हेयर कम द बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, बाय सेल्स, इतने की सेल्स की, माइनस कर दिया मैंने हम्म, रिटर्न, कितना रिटर्न था। हम्म, ठीक है, तो ये बाय सेल्स हो गया। ठीक है, सो यहाँ हम आपके लिए कितना है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज में से रिटर्न गया, देन जितने भी सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, कार्ट्रेज, फ्रेट, फैक्ट्री हम्म, रेंट, बेल्टिंग, तो ये हम्म, सारे हमारे पास क्या है, सारे हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जितने भी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, तो आप अमाउंट हो गई बाय द क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक है। अब यहाँ देखिए एक बार अच्छे से इसको एनालाइज कीजिए। दिस इज योर मोटिव पावर। ठीक है, टैलो एंड ऑयल, कॉल, कॉक, गैस एंड वाटर, एक्साइज ड्यूटी, ये हमारे लिए क्या है, एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, डॉक चार्जेस, जितने भी सारे डॉक चार्जेस, मतलब सारे आपके डॉक मैन्युफैक्चरिंग, चार्जेस मतलब दी शिपिंग। हाँ शिपिंग के लिए शिपिंग आप चार्जेस, ओके। मटेरियल आया है, ठीक है, आपने उनको सेल हम्म, किया है, तो उसके लिए ठीक है ना, क्योंकि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्राई चार्जेस हो गया, जितने भी सारे आपके एंटायर चार्जेस हैं। आप देखिए आपका जो ऑयल है, ठीक है, कॉल आया है, कॉक है, ठीक है, गैस एंड वाटर का, ठीक है, जितने भी सारा आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, अदरवाइज ये सारे जितने, यही सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे आपके कहाँ आएंगे, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे। हम्म, और उसके अलावा आपको बैलेंस निकालना है। अगर यहाँ पर आपके पास बैलेंस बचता है, ठीक है, कि आपका डेबिट साइड होगा, तो वो आपके लिए आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। और यही जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये कहाँ जाएगा, ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ये मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो दिस ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू द P&L अकाउंट। क्लियर हुआ। सो दिस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है हम इसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आगे देखिए, अगर ये साइड मेरे पास क्या, अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट कम है, यानी कि मेरे कम है। खर्चे ज्यादा हैं। अगर मेरे हम्म, एक्सपेंस ज्यादा होगा, एक्सपेंस मेरे ज्यादा है, यानी कि मेरा खर्चा ज्यादा है, तो बाय ग्रॉस लॉस कितना हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगी आपकी ग्रॉस लॉस के लिए। सो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो दिस इज द बाय ग्रॉस लॉस के द्वारा, और ये होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। So this is our two gross profit transfer to profit and loss account। ये होगा आपके पास बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय क्रॉस। दी रॉयल्टीज में एक बार समझी नहीं। रॉयल्टी, रॉयल्टीज। जैसे एक्चुअल में क्या होता है कि रॉयल्टी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई मशीन्स है, ठीक है, आपने कोई मशीन है, ये हम्म, आपने ली है किसी से साल भर के लिए, आपने सोचा कि मैं इन मशीन को परचेज करने की बजाय लीज पे ले लेती हूँ, तो उसके लिए आपने अच्छा, ओके ओके, कोई ना कोई पेमेंट दी है। कि जैसे ही उसी के लिए क्या होता है कि हमने रॉयल्टीज में आप किसी की जो वैल्यू होती है ना, गुडविल की, आप उनकी पेमेंट करते हो, आप उनका कोई एसेट यूज कर रहे हो, या आप उनका कोई राइट है, कोई ऐसा चीज है टेक्निकल, आप उसे यूज कर रहे हो, तो वो आपकी क्या है, रॉयल्टीज है। हम्म, तो ये मोटिव पावर है,
tallow and ठीक oil, है दी। cotton cost, gas and water, excise duty, डॉक चार्जेस, ऑक्ट्राय चार्जेस, रॉयल्टीज हैं। और टू प्रॉफिट अकाउंट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो दिस अकाउंट इज अ मेन, ठीक है ना, बाय द नेम itself it is says the profit and loss account and all those profits, ठीक है, and incomes as well as the our revenue and the losses are a part of the our nominal account, so please mention that कि जितने भी सारे आपके, क्योंकि ये प्रॉफिट है लॉस है, ये सारा आपका नॉमिनल अकाउंट का ही हिस्सा है या आपका नॉमिनल अकाउंट का ही क्या है, पार्ट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक मेरा नॉमिनल अकाउंट है एंड एज सच ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जितने भी सारे मेरे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं और जो लॉसेस होते हैं उन्हें हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और जितनी भी मेरी इनकम्स और मेरी गेन्स होती हैं उन्हें हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल। कह रहे नॉमिनल अकाउंट रूल्स के हिसाब से, ठीक है, जितने भी मेरे सारे के सारे यानी कि क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनकम है गेन है, ठीक है, जो भी हमारे इनकम है गेन है वो मेरे क्रेडिट साइड में आएंगे, और जो भी मेरे लॉसेस हैं, ठीक है, वो मेरे सारे डेबिट साइड में आएंगे। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं या लॉसेस हैं उन्हें डेबिट करना, और जितने भी सारे इनकम है या गेन है उन्हें क्या करना है, हम्म। क्रेडिट करना है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने हम्म। भी सारे खर्चे होंगे, ठीक है, तो हमें उन्हीं को ही, इसी रूल्स को हमें यूज करना है इन्हें प्रिपेयर करने के लिए। आप यही देखिए जितने भी सारे मेरे ये तो खर्चे हैं, बहुत सारे है दी, है ना? एग्जैक्टली, हाँ। अब यू आपको लर्न करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बहुत इसको लर्न करनी है सारे रूल्स को। एक बार आप गो थ्रू होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और देखो मेन एक्सपेंसेस को ना डिवाइड किया हुआ है, एक्सपेंसेस का ना एक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि हमें किस टाइप से एक्सपेंसेस को क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, तो वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मुझे जितने भी सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम है तो अच्छा होगा कि आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लर्न कर लो, ठीक है, क्योंकि मेरे वो एक्सपेंसेस क्या है, कम है, हम्म। वो मेरे इतने ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, जितने भी सारे इनकम गेन है उन्हें क्रेडिट कर लो, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को क्या कर दो, डेबिट कर दो। सो ऑल द इनकम एंड गेन्स को हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और एक्सपेंसेस को, लॉसेस को हम डेबिट साइड में दिखाएंगे नॉमिनल अकाउंट के। आगे देख लेते हैं क्या है। मेन चीज ये ध्यान देना कि आपका जो प्रॉफिट है, बिकॉज हेयर बाय द मेथड ऑफ, यानी कि बाय द अकाउंट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस टू फाइंड आउट देयर नेट प्रॉफिट, हमें हमारा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, द एग्जैक्ट मोटिव ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, द एग्जैक्ट मोटिव ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अवर द नेट प्रॉफिट अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालना या नेट लॉस को निकालना ही मेरा क्या है, एग्जैक्ट मोटिव है। सो यहाँ आप देखिए क्या मोटिव होगा, सो हेयर इज माई द पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट है, ये डेबिट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिट है, ठीक है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है, आप यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये मेरा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है, यहाँ मैंने ट्रांसफर हम्म। कर दिया, तो ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है, अच्छा, ट्रेडिंग देखो, अकाउंट से। हाँ, तो हम्म। देखो प्रॉफिट और
जब तक आपको प्रॉफिट नहीं लगेगा, बाकी के एक्सपेंसेस जो होंगे आप उसी प्रॉफिट से ही तो निकालोगे। भाई आपके स्टाफ की सैलरी जा रही है, आपका और खर्चा हो रहा है, आपका स्टेशनरी का खर्चा है, बाकी सभी खर्चा है, आप जेब से कब तक भरोगे? आप बस जेब से भर सकते हो स्टार्टिंग में, गुड्स को परचेज करने के लिए भर सकते हो, जब तक वो सेल नहीं होगा या फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट से वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी तब तक आप कैसे करोगे? हम्म, ठीक हाँ है। सही बात है। हम्म। तो वही सब लिखा है, कह रही है कि आप यहाँ पे देखिए, तो आपका ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ट्रांसफर्ड हुआ है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया है। वहां पे जो ग्रॉस लॉस होगा वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। सो टू ग्रॉस लॉस है, हम्म ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सो टू ग्रॉस, तो यहाँ क्या हो गया, बाय ग्रॉस लॉस में यहाँ ट्रांसफर हो गया टू ग्रॉस लॉस, तो ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जितने भी ज्यादा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से टर्म्स में खर्चे होंगे, आप एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लीजिए सबसे पहले। तो सैलरी। आपने एक्सपेंसेस को डिवाइड कर लो, ये आपका हम्म, खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये आपके ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। एक्सपेंसेस है। आप ऑफिस भाई का। आपने कोई ना कोई सेल करने के लिए, सामान को बेचने के लिए कोई ना कोई ऑफिस तो खोला ही होगा ना, हम्म। है ना, आपने ऑफिस खोला होगा, आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा वो आपने करने के लिए। सो ये क्या है आपके लिए, तो ये आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होते हैं, आप इन्हें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नोटबुक है, बुक है, तो आप उसके ऊपर लिख लीजिए हाँ ऑफिस एंड लिख लेती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, दीज एक्सपेंसेस आर ऑफिस एंड। आल्सो नोन एज अवर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। इन एक्सपेंसेस को हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी कहते हैं। सो ये हो गया आपके पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट इज अवर द टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं ये मेरे पास, कि हमने कितना सेलिंग करके सेल किया, हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। सो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, कि जैसे एडवर्टाइजिंग से, कमीशन से, बैड डेट से, ठीक है, कैटलॉग से, इंश्योरेंस हम्म प्रीमियम से, ब्रोकरेज से, नोटिंग चार्जेस से, डिस्काउंट अलाउड से, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस से, जितने भी हमारे पास ये डिफरेंट चार्जेस हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सेल करके, हम्म, डिस्ट्रीब्यूट करके कौन कौन से ये खर्चे होते हैं, वेयर हाउस है, स्टोर रेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, এক মিনিট দি হ্যাঁ। মাম্মি আমি পড়তেছি এইখানে, ওইখানে যাই কথা বলো। हाँ दी। ठीक है। सो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस में, एक बार मैं आपको वन बाय वन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है मैं आपको उसको बता देती हूँ। सो नंबर वन इज अवर द टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, दिस इज द सैलरी, ठीक है ना, सैलरीज, प्लीज मेंशन दैट द सैलरीज आर द पार्ट ऑफ द अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पे वेजेस उसके बाद में है, ठीक है, बट आपके पास एक टर्म्स आती हैं वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अगर वेजेस पहले है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन अगर सैलरी पहले है, कि जैसे लिखा है सैलरी, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड वर्ड लगा देती हूँ, एंड वेजेस, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है। रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, ऑफिस की लाइटिंग है, वो आपके पास अलग, उसमें ट्रेडिंग में जो खर्चा आया था, लेकिन ये सारा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, कि आपने ऑफिस रखा हुआ है, आपको उसको आप मैनेज कर रहे हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, फीस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के जो भी आपके हैं एक्सपेंसेस हैं, सो दीज आर द योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑडिट फीस, ठीक है, ऑफिस कार कीपिंग, ऑफिस की कार रखी है उसके खर्चे हैं, ऑफिस के जनरल एक्सपेंसेस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, एनी एक्सपेंसेस रिगार्डिंग विद योर द ऑफिस, ठीक है। सो वो आपके सारे डेबिट साइड में होंगे। और इसके अलावा आपके हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस तब होते हैं जब आपने अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, अपने गुड्स को बेचने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए आप करते हो, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आपके पास डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होंगे। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या है? वेयर हाउस एंड हाउस स्टोर रेंट है। ठीक है, तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वेयर हाउस का खर्चा हो गया। ठीक है, पैकिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, आपने पैक किया, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड है, या आपका कैरेज इनवर्ड नहीं है, या आपका कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैरेज आउटवर्ड है। तो कैरेज आउटवर्ड में, क्योंकि जब कभी भी गुड्स जाता है, आपका गुड्स प्रिपेयर हो चुका है, तब उसके बाद का ही आपका खर्चा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप कस्टमर्स को कर रहे हो, या फिर आप ये जो भी बीच के मिडल मैन है उन्हें कर रहे हो। तो ये आपका ब्रोकर्स एक्सपेंस हैं। है ना, तो जब तक, हाँ, जब तक उनके तक नहीं हो जाता, तो ये आपका कैरेज आउटवर्ड है। सैम्पलिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, कैटलॉग की कह रही है, सैम्पलिंग एक्सपेंसेस है आपके, कैटलॉग की कॉस्ट है। बैड डेट्स है, कमीशन, बैड डेट्स कमीशन है। एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, तो बैड डेट्स हो गया, आपके कमीशन है, दी एडवर्टीजमेंट ये है। पूरा फॉर्मेट ऐसा आएगा कि हमें बनाना है? नहीं नहीं, यू हैव टू लर्न। ठीक है ना, यू हैव टू हाँ, प्रिपेयर द पूरा लाइन बाय फॉर्म विद द लाइन। इंफॉर्मेशन। ये नहीं, लाइन बाय लाइन आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सारे एक्सपेंसेस आएंगे, इट डिपेंड्स ऑन द अच्छा। क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट हम्म। पुट, आपको वो जस्ट उनकी पोस्टिंग करनी है कि वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सी, क्वेश्चंस आपके किस तरीके से आएंगे, बिकॉज बैलेंस शीट का भी ये परफॉर्मा आपको समझा के, कल हमें इनकी न्यूमेरिकल्स के, देखो ये आपको इस तरीके के बैलेंसेस गिवन होंगे। ठीक है, जिस तरीके से कि हमें ऐसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। या देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मींस वी नीड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, वी नीड टू ट्रेडिंग प्रिपेयर अकाउंट, अ प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड अकाउंट, लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट। ठीक है, so in the final account we have to prepare a three accounts, so options is given. ठीक है, we will ठीक है do दी। this type of numericals in our the last, ठीक है, in our the next class। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपकी जो ये नेक्स्ट क्लास होगी, वो मैं न्यूमेरिकल्स का। आपकी क्लास लूंगी, कॉलेज के बच्चों के साथ लूंगी। ठीक है, तो आज की अच्छा दी, क्लास ठीक होगी, है। वो आपकी होगी 29 को। तो प्लीज रिमेम्बर दैट। ठीक है, ऑन द ठीक 29 वी है। हैव, ठीक है, क्लास होगी ऑफ 2 आवर्स एट 12:30। ठीक है, ट्वेल्व ठीक है दी, थर्टी टू टू मैंने लिख लिया। थर्टी हाँ, प्लीज ध्यान रखेगा, बिकॉज हमें इनके क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट करने, बहुत इजी है। ठीक है, और हम ये तभी 2 घंटे में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अभी मैं आपको इसकी जो बैलेंस शीट्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से परफॉर्मा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेल अवेयर अबाउट द परफॉर्मा के बारे में, वो ऑलरेडी वेल अवेयर हैं, उन्हें पता है। तो इसीलिए मैं आज आपको इनकी जितनी भी सारी डिफरेंट टाइप की एंट्रीज है, वो सब एंट्रीज समझा रही हूँ। ठीक है ना, सी, तो उसके अलावा जितने भी सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, योर एक्सपेंसेस हैं, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, कि पैकिंग एक्सपेंसेस, आपने पैक कर रहे हो, फिर खर्चा आ रहा है आपका। ठीक है, जैसे कैटलॉग का है, बैड डेट्स है। सो देखो, बैड डेट्स भी आपके कौन से खर्चे हैं, आपके ये एक बैड डेट्स आपका नॉन कैश एक्सपेंस है। आपका डेप्रिसिएशन भी आता है इसी के अंदर, ध्यान रखना। हाँ और हाँ आप हाँ। लिख लो, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी आते हैं, अभी तो इसमें नॉन शायद कैश प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नहीं है। हाँ, बिकॉज बैड डेट्स, देखो मतलब कैश तो नहीं गया भाई, आपने कमीशन पे कर रहे हो, तो आपका कैश गया है ना जेब से, तो ये भी खर्चा है। जरूरी नहीं होता है कि जो कि एक ऐसा खर्चा हो जिसमें कैश ही जाए, किसमें एक्सपेंस पे हुआ है तो वो आपका क्या है, वैसा खर्चा है। तो जैसे कि आपका बैड डेट हो गया, ठीक है, कमीशन ये हो गया, एडवर्टीजमेंट है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है, कि जैसे एक्सपोर्ट के जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपोर्ट में खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे की है,
ठीक है ना। सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया गया है, ब्रोकरेज आपने पे की है, नोटिंग चार्जेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं, डिस्काउंट आपने अलाउड है। तो जितने भी सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। डिबेंचर को इश्यू करने में जो आपको डिस्काउंट आया है, सो डिस्काउंट ऑन द इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हमने इश्यू किया है तो उस पर जो डिस्काउंट आया है, डिस्काउंटिंग बिल, ठीक है। तो जितना मेरा डिस्काउंटिंग बिल है, लॉस इन द एक्सचेंज की एक्सचेंज करने में कितना लॉस हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट है, तो ये सारे जितने भी मेरे एक्सपेंसेस होते थे, तो इन सब में किया, ठीक है। उनमें से ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका सारा क्या है, क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस है, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या होंगे, कैश डिस्काउंट। और तो ये सब आपकी आपकी इनकम्स है, ये तो बहुत सिंपल है इसका परफॉर्मा, हम्म। कि हम्म। इनकम सारी आ जाएंगी। मान लो कि जो आपका एक्सपेंसेस था, यहाँ पे बैड डेट था वो रिकवर्ड हो गया, आ गया आपके पेमेंट आ गई, पैसे आ गया, ठीक हम्म। है। तो अच्छा है, मनी जो आपने डिपॉजिट किए थे उस पे इंटरेस्ट आपको मिल गया, कमीशन क्या पता आपने रिसीव की है, अदर सोर्सेस से इनकम हुई है, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट अर्न किया गया है आपने, और दूसरी एसेट्स हैं या उन्हें आपने क्या किया, सेल किया है। सो उन सभी को सेल करके आपने प्रॉफिट अर्न किया है, तो वो भी आपका इसी साइड आएगा। Clear? So the cash interest, income from the investment, dividend on share, शेयर्स पे जो डिविडेंड है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है, मिसलेनियस है, ठीक है। मनी डिपॉजिट है, उस पे इंटरेस्ट आपने किया है, तो वो भी आपका इसी साइड आएगा, ठीक है। बाय द नेट लॉस ट्रांसफर टू, और ये जो नेट लॉस होगा वो आपका कहाँ पे ट्रांसफर होगा, दिस नेट लॉस इज ट्रांसफर टू योर द बैलेंस शीट। ये जो नेट लॉस है ये आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। दिस नेट लॉस इज ट्रांसफर टू योर द बैलेंस शीट। ये जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है, ये आपका, ये नेट प्रॉफिट भी आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, और वो जो ये नेट लॉस है ये भी आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ठीक है। ज्यादा समझ में आएगा। बाकी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं आपके, ठीक है, कौन से एक्सपेंसेस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वो आपके कौन कौन से हो गए हैं, सो मतलब शॉर्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्लस योर नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्लस योर नेक्स्ट एक्सपेंसेस, कौन से आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ये सारे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये सब आपके जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपकी इनकम्स होंगी, कि लाइक इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, कैश डिस्काउंट आपने अर्न किया है, जितने भी सारी आपकी इनकम है, बैड डेट, रिस्क रिकवर्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ये सारी इनकम्स आपके इन साइड में जाएंगी। इट इज एज सिंपल, ठीक है। कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप शॉर्ट में लिख लीजिए, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस भी हैं आपके, और जितने भी सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आपके कहाँ जाएंगे, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। बहुत सिंपल है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। यहाँ हमने सिंपली लिखना है वहां से, और यहाँ हम्म। का जो ये भी देखो, ये ध्यान रखना, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट हमें नीड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बोलते हैं। जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट किया है हम उसे ग्रॉस प्रॉफिट या हम उसे ग्रॉस लॉस बोलते हैं। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया है उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, ठीक है? नेट हाँ, लॉस, हाँ, तो ग्रॉस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। हाँ, आप ओके। अच्छे से देखिए, बच्चे हम्म। बहुत कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं मैम प्रॉफिट तो निकालना है, कहाँ लिखा है कौन सा प्रॉफिट निकालना है। अरे निकालना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, अदरवाइज हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हम्म।
ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको निकालने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट है वो उसका प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो अब आप देखो इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? टू एसरटेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को निकालने के लिए इन सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है, टाइम के सर्टेन पीरियड में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने के लिए। सेकेंड है टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर, कि हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस को पिछले साल प्रीवियस ईयर हम्म, के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करना। हम करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर रहे हैं। टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। थर्ड है टू नो इंफॉर्मेशन ऑन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफ विच परसेंटेज बियर टू ग्रॉस प्रॉफिट। कह रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को जो परसेंटेज बियर है उस पे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता है वो। सो टू नो इंफॉर्मेशन ऑन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ विच परसेंटेज बियर टू ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है टू नो नेट प्रॉफिट रेशियो टू एसेट टर्नओवर। अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, तो नेट प्रॉफिट से जो भी आपके डिफरेंट टाइप की रेशियोज कंप्यूट होती हैं, तो आप उन अलग अलग टाइप के रेशियोज को भी निकाल सकते हो। तो ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से सिंपल है कि देखो आपको अगर सिंपल है कंपेयर करना, हम आपको प्रॉफिट निकालना है, लॉस कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉफिट और लॉस जो करंट ईयर के प्रीवियस ईयर के साथ क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। सो टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है, सो टू नो द इंफॉर्मेशन ऑन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको वो कैलकुलेट करनी है कि एक्चुअल में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है भाई, इतना मेरे ग्रॉस प्रॉफिट से इतना मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा निकल के आ रहा है। आपको हर चीज का आइडिया लग जाएगा कि आपका एक खर्चा कितना है, आपका एक्सपेंस कितना है और आपकी इनकम कितनी है। ठीक है, आपका हम्म, एक्सपेंस, आपकी इनकम कितनी है, आपका एक्सपेंसेस कितना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट पे जो परसेंटेज बियर पे आपका एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, ध्यान देना। अब है टू नो नेट प्रॉफिट रेशियो टू एसेट टर्नओवर, कि जैसे जो भी आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट को, ठीक है, नेट प्रॉफिट टू एसेट टर्नओवर, जो आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो है वो आपको निकालोगे। ठीक है, ऑफ टू गेटिंग द रिजल्ट हाउ फार हैव बीन अचीव, कि कितना रिजल्ट कैसे निकल के आया है। ठीक है, ये एक छोटा सा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, ये तो मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ। एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, then नाउ gains, yeah. वी विल डू द नेक्स्ट वन, क्योंकि जो भी हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का प्रॉफिट निकाला है या लॉस निकाला है वो आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बैलेंस शीट से आप में ये हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये बैलेंस शीट, ये फाइनल है। हाँ, तो ये फाइनल तो है, इसमें आपके पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन होती है। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, बैलेंस शीट मेरी स्टेटमेंट है विच रिफ्लेक्ट्स, क्या हम्म, रिफ्लेक्ट करती है? ट्रू पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड पे एसेट्स ये हैं, लायबिलिटीज ये हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रू पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक, so it is our the financial balance sheet. So balance sheet is a statement which reflects the true position of the asset and liabilities on a particular period. So एक particular period पे assets की liabilities की true position को it is known as the financial statement। ठीक है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट एसेट एंड लायबिलिटीज चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिजल्ट के कारण डे टू डे मेरी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
इस साइड मेरी एसेट्स है और इस साइड मेरी क्या है, लायबिलिटीज है। ये मेरी कितनी चेंज हो रही है, ये मुझे निकालने के लिए कि एक्चुअल में क्या मेरा जो कर्जा है वो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये इक्वल करने के लिए अगर हमें लगता है कि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो मेरे कर्जे ज्यादा हो रहे हैं, या उन्हें मैं रीपे करने के लिए उतनी एसेट्स हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपके एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब कि आपके बिजनेस में जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। और देखो, आफ्टर ऑल जो आपका बैलेंस शीट है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आपकी कहाँ से प्रिपेयर्ड होती है, योर बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड होती है। आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस ऑन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, आपके जितने भी नॉमिनल अकाउंट के सारे खर्चे हैं, बैलेंसेस हैं, वो आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि ट्रेडिंग में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर आपके हम्म, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर में जाता है। द बैलेंसेस नाउ लेफ्ट इन द ट्रायल बैलेंस एंड रिमेनिंग वन इन द लेजर रिप्रेजेंट द आइदर पर्सनल और द रियल अकाउंट। So all the assets and liabilities are set out in the balance sheet। कह रहे हैं कि बैलेंस शीट में जो भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, एक सिस्टमेटिक मैनर में। सो ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर सेट आउट इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जितनी भी सारी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज सेट आउट होती है, एक सिस्टमेटिक मैनर में जाती है। ठीक है, तो इन द राइट साइड, आपके राइट साइड में एसेट्स होते हैं और आपके लेफ्ट साइड में क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। liabilities। हाँ, इन द राइट साइड आर शोन द एसेट्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपके एसेट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या है आपके पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स के आपके कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? So, objectives of the balance sheet to find out the financial position of a business firm for a particular financial period। एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड के लिए पोजीशन निकालना, एक्चुअल में हमारे बिजनेस की जो हमारी ट्रू पोजीशन है उसे निकालने के लिए। ठीक है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन की, यानी कि जो पैसा है कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और हम उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मेन चीज होता है कि ये जो आपकी बैलेंस शीट है, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं कि जिनका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है। जैसे इनकम टैक्स मतलब इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट नहीं बेटा, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं, स्टेक होल्डर जिनका हम्म, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है, मान लीजिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को बहुत मतलब हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, लाइक फाइनल अकाउंट है, बैलेंस शीट, इनको प्रिपेयर करने इनको इनको देखने प्रिपेयर क्यों कर। हेल्प होती है कि हाँ भाई हाँ। इनका एग्जैक्ट बैलेंस निकाला है या नहीं। जनरल पब्लिक क्यों देखती है, अभी वो इन्वेस्टर एग्जैक्टली हुए नहीं है, फिर भी वो हमारी जनरल पब्लिक क्यों देखती, कि ताकि वो देखने के लिए कि हमें कौन से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो ये हमारी जनरल पब्लिक है। ठीक है, क्रेडिटर्स देखते हैं, और हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट है। सो टू एक्ट एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल फॉर द स्टेक होल्डर, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कि हमारे आगे के फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम इसमें डिसीजन ले सकें। ठीक है, टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, कि हमें कि एसेट्स मेरी कितनी ज्यादा है, अगर यानी कि मेरे पास लायबिलिटीज ज्यादा हो रही है, तो मैं आगे से ध्यान रखूं इसको, मैं आगे और इम्प्रूव ना करूं। और बिजनेस को उसकी यानी कि ईयरली एसेट्स उसने कहाँ इन्वेस्ट किया, कितनी उसने एसेट्स प्रिपेयर की हुई है, उन सभी को देख सके, लायबिलिटीज का भी उसे अंदाजा हो जाए। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ हम्म। बैलेंस शीट। ठीक है, बहुत सिंपल है आपकी स्ट्रक्चर, आप इसे मुझे ये इस पूरा याद करना है, ये मतलब, वाला। हाँ, आपको सिंपल है, कोई इतना टेक्निकल स्ट्रक्चर्स नहीं है, आप इसको कैसे भी कर सकते हो। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि हमारा लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंसेस होता है।
ये एक दी तो इक्वेशन। ये यहाँ पर लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड में क्यों है और एसेट राइट में क्यों है? एसेट तो हमेशा लेफ्ट में होता है ना। एसेट्स हाँ, पर लेकिन यहाँ आपका डेबिट है, यहाँ डेबिट क्रेडिट अलग है। यहाँ आपके पास क्रेडिट साइड है और ये आपके पास डेबिट साइड है। ठीक है, ये आपके पास क्रेडिट साइड है और ये आपके पास डेबिट साइड है। जैसे कि अच्छा, तो यहाँ उल्टा यहाँ, कर दिया। हाँ तो यहाँ आपके पास हमने एक इक्वेशन स्टडी की थी ना, कौन सी, कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस लाइबिलिटीज कैपिटल। प्लस कैपिटल। हाँ हाँ तो दी। वही है। तो यहाँ पर आपके पास लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो गया, वो किसके इक्वल है, वो आपके एसेट्स के इक्वल है। अब तो हम जो देखा जाए तो आपका ये इस मॉड्यूल में बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर ऐसे गिवन है, लेकिन अब हम ना जो बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट टाइप से प्रिपेयर करते हैं। तो पहले ये स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद हम डिफरेंट कर लेंगे। जैसे हम्म। आपके पास है एसेट्स, एसेट्स में आपके पास होते हैं दो टाइप के एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं एंड फिक्स्ड एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स आपके होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, देखो ये आपके सारे लॉन्ग टर्म है, गुडविल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपके क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपके करंट एसेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, कि जैसे आपके पास क्या डेटर्स हैं भाई, अ, हम्म। किसी से पैसा आएगा मुझे तो वो मेरी एसेट है। अगर मान हाँ, लीजिए क्या पता वो 2 दिन बाद ही पेमेंट आ जाए, तो वो तो मेरी लॉन्ग टर्म नहीं है ना, शॉर्ट टर्म हो गया। शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म हो गया, इन्वेस्टमेंट की है आपने कहीं, आपको कहीं इनकम रिसीव होनी है, ये ध्यान रखना, इनकम एक्यूड है, इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग है, रिसीव होनी है। और जो भी हम्म। खर्चे हम पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, ये भी मेरे एसेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, कि आपके पास इतना वेल वर्थ है कि आप सारे अपने एक्सपेंसेस को पहले से ही क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उन्हें आपने पहले से ही पे कर दिया है। सो ये आपके क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आपने एक्सपेंसेस को पहले से ही पे कर दिया। सो दिस इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये आपके एक्यूड इनकम है। बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कैश इन हम्म। हैंड, कैश इन हम्म। हैंड है, और ये आपके पास कैश एट बैंक है। सो ये आपके पास करंट एसेट्स है। ठीक है, ये आपके करंट एसेट्स है और ये आपके क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो फिक्स एसेट्स आपके पास कौन सी हो गई हैं, कि जैसे गुडविल है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, प्लांट एंड मशीनरी, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपके सारे कौन से एसेट्स हैं, ये आपके डेबिट साइड में एसेट्स हैं। नेक्स्ट है हम्म। आपकी जो ये लायबिलिटीज में थी क्रेडिट साइड में, तो हमारे पास लायबिलिटीज के, ठीक है ना, इसके भी दो पार्ट्स हैं, जैसे एसेट्स के दो कैपिटल पार्ट। है। तो हम्म। लायबिलिटीज में भी दो पार्ट्स है, आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज हैं और आपकी कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज हैं। तो यानी करंट लायबिलिटीज आपकी कौन सी होती है, ये आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है और ये आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज है। अगर हम फिक्स्ड लायबिलिटीज का पार्ट, ये आपका हो गया लॉन्ग टर्म लोन है आपके, ठीक है, ये आपके लॉन्ग टर्म लोन है, ये आपके रिजर्व्स हैं। ठीक है, शॉर्ट हम्म। टर्म लायबिलिटीज में जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स हम्म। पेबल, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। देखिए जो एक्सपेंसेस मेरे ड्यू होते हैं, जो एक्सपेंसेस मेरे क्या है, ड्यू हैं, वो आ जाएंगे। इनकम मुझे एडवांस में मिली है, ध्यान रखना, मेरे आउट एक्सपेंसेस जो मेरे ड्यू है वो तो मेरे कर्जे हैं ही, और जो मैंने एक्सपेंसेस हम्म। को पहले ही पे कर दे वो मेरी इनकम, मतलब कि वो मेरे लिए क्या होती है, इनकम्स में हो जाएगा। लाइक कि एक तौर पे, सॉरी इनकम नहीं है वो मेरा, कर्जा नहीं है वो मेरे लिए क्या है, एक वर्थ है मेरी, कि मैंने एक्सपेंसेस को, मेरे पास कोई भी ड्यू नहीं है, तो ये मेरा डेबिट साइड में। इनकम आपकी एक्यूड है, तो वो आपका क्रेडिट, क्योंकि वो आएगी पैसा। अब इनकम आपने पहले से रिसीव कर चुके हो, इट मीन्स कि अब आपने वो खर्च कर दी है, तो वो आपका क्रेडिट में आएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तो फिक्स्ड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस रिजर्व्स हैं। ठीक है, फिर आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमने नेट प्रॉफिट निकाला था ये कैपिटल में, कैपिटल आपको कैसे निकालोगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला था, उसमें मैं कैपिटल पे ही कोई इंटरेस्ट है वो ऐड करूंगी। मान लीजिए कि पार्टनर है उसको इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, ड्राइंग्स है वो लेस करूंगी, और ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है वो लेस करूंगी।
तो ये मेरे लिए कैपिटल का हो गया, ठीक है। तो ये कैपिटल की ट्रांजेक्शन्स आपके लिए है और ये आपके एसेट्स की ट्रांजेक्शन्स है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट का ये स्ट्रक्चर है, हेयर द एसेट्स इज इक्वल टू दी अवर, ठीक है, कैपिटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्लियर हुआ? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ दी, ये एक बार मुझे आइटम्स हैं। दी, ये पूरा पूरा मुझे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बाबू, करना तो पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रक्चर, परफॉर्मा है। क्वेश्चंस की हम कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे फिर तो लर्न भी हो ही जाएगा, पर बिफोर दैट ट्राई टू लर्न दीज। ठीक है दी। ये तो ओके। देख लो, समझ लो, और तो कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं दी, वैसे तो नहीं है, बट ये पूरा लाइन बाय लाइन करना तो लिख लिख इजी, के कर लूंगी। अरे पहले आप इसकी हेडिंग हेडिंग ब्रॉड हेडिंग हेडिंग देखिए। आपको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 3 एक्सपेंसेस के टाइप बताए ना, तो ऐसे ही बैलेंस शीट में ये एसेट्स के 2 टाइप हैं, लायबिलिटीज के 2 टाइप है, ये कैपिटल है। आपको इस टाइप से समझ में आ जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वरी, सब हो जाएगा। ठीक है दी। दी, ये जो इन सब की वैल्यू अमाउंट्स दी रहेंगी ना कि हमें निकालनी हाँ है? एग्जैक्टली बाबू, अमाउंट तो दे रखी होंगी। जब आपका इन दोनों का टोटल मैच हो जाएगा, यहाँ कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलता बैलेंस शीट में। जब आपका टोटल मैच होगा, इसका मतलब कि आपका पूरा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है दी। ठीक है ना। तो बाकी के इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दी, जो ये एग्जाम्पल, अच्छा ये कल करेंगे? ठीक है, ओके बाकी दी। हम नेक्स्ट मैं क्लास में आज कवर। भी करके देखूंगी, अगर मुझे कुछ डाउट हाँ लगे तो मैं श्योर आपसे श्योर, पूछती हूँ। आप इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके दी।